ચેનલ ઓફ વડોદરા। કરજણ કલા શરીફ ખાતે મુસ્લિમ સમાજના યુવક યુવતીઓનો 16મો સમૂહ લગ્ન ઉત્સવ તેમજ સૂફી એવોર્ડ સમારોહ યોજવામાં આવ્યો હતો। વડોદરા જિલ્લાના કરજણ તાલુકાના કલા શરીફ ખાતે મુસ્લિમ સમાજના યુવક યુવતીઓનો સમૂહ લગ્ન ઉત્સવ સમારોહ તેમજ સૂફી એવોર્ડ સમારોહ યોજવામાં આવ્યો હતો। આયોજિત સમૂહ લગ્ન ઉત્સવ સમારોહમાં 45 યુવક યુવતીઓએ નિકાહના પવિત્ર બંધનમાં જોડાઈ સાંસારિક જીવનનો પ્રારંભ કર્યો હતો। કલા શરીફ સ્થિત ફૈઝ ચેરિટેબલ સેવાભાવી સંસ્થા એક અંતરિયાળ વિસ્તારમાં ગરીબ વર્ગના લોકોની અવિરત મદદરૂપ બની સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલી છે। અંતરિયાળ વિસ્તારમાં શિક્ષણરૂપી ચમનની સ્થાપના કરી શિક્ષણની એક અનેરી સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી છે। કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત અતિથિઓનું પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરીને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। તેજસ્વી છાત્રોને સૂફી એવોર્ડ્સ એનાયત કરી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। અહીંના સમૂહમાં જે દીકરા દીકરીના લગ્ન થયા તેમના પિતાનું પણ શાલ ઓઢાડીને તેમનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। કાર્યક્રમના અંતે ફૈઝ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના આદ્ય સ્થાપક સૈયદ મુસ્તાક અલી બાવા સાહેબે નવયુગલોને દુઆઓ આપી તેઓનું લગ્ન જીવન સુખમય અને સફળ નીવડે તે માટેની શુભેચ્છા પાઠવી હતી। જાહિદભાઈ ગોરવા, ઇલિયાસભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈની ગુલપોશી કરશે। દિગુબા છત્રસિંહ મહિડાની આ બાજુ સાહેબ સાહેબ આ બાજુ અજીતભાઈ રાણાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આપણા જોડા નંબર 23 दीवान मोहम्मद शहजाद हसन अली और दुल्हन शाह अफरोजा इकबाल भाई। जोड़ा नंबर 24 तैयार रहे। दूल्हा मलिक मोहम्मद इमरान रफी और दुल्हन शेख मदीना बानो महमूद मियां सन्मान करी। मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर है। तारीफ के मोहताज होते नहीं कुछ लोग, क्योंकि फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। सो बिफोर आगे बढ़ता पहला હું અહીંયા પ્રેઝન્ટ હરેક દુલ્હનને એક વસ્તુ કહેવા માંગીશ। મેં હરેક દુલ્હાને આ બાજુ દેખ્યો આ બાજુ દેખો આ બાજુ કરીશ કે તેઓ એમને સન્માનિત કરશે। આપની જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ વચ્ચે પટેલ સાઝિયા બशीर जो है बीएससी केमिस्ट्री का ग्रुप फोटो हो रहा है। हम एक जोरदार तालियों के साथ फिर उनकी हौसला अफजाई करें ताकि उनके अंदर भी एक आगे बढ़ने का हौसला बढ़े और हमारे अंदर भी। आइए हमारे मेहमान खुसूसी ચાલો બધા એકવાર આ બાજુ એમનું સ્વાગત કરું છું। થેન્ક યુ સાહેબ। આપણી વચ્ચે આપણા બીજા મહેમાન છે પ્રતિકભાઈ શેખને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવી ડોક્ટર ઇસ્માઇલ પાલા સાહેબની ગુલપોશી કરે। સબ્બીરભાઈ કડીવાળાની ગુલપોશી કરશે ઇલિયાસભાઈ। દિગુબા છત્રસિંહ મહિડા। આપણે सूफी मिल्लत सैयद मुश्ताक अली बाबा साहेबे सोहेल तिरमिजी साहब ने गुलपोशी કરી સન્માનિત કર્યા છે।
ઊભા રાખીને પાડો કઈથી પાડું પણ આ ઉપરથી તો એંગલ નહીં મળે આ બાજુ सरकारे जनाब एडवोकेट मोइन रिफाई साहेब ने पण गुलपुष्टि करी है। ઊભી રાખને અને મારા ને યુનુસ પટેલની હરેક ફેમિલી મેમ્બર તરફથી કોંગ્રેચ્યુલેશન કહું છું ને અલ્લાહ પાક તમારા નિકાહમાં ખૂબ બરકત આપે ને તમારા લોકોને જોડા હંમેશા માટે કાયમ સલામત રાખે। जल्ल जलालुहु व मनवालुहु થી દુઆ કરીએ અલ્લાહ તાલા એમની મગફિરત ફરમાવે, એમને અજરે અઝીમ અતા કરે। એમના લખતે જીગર આજે આપણા વચ્ચે છે, તો હું ચોક્કસ ફઝીલાબેનને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવી અને પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરે। સમાજ ચોક્કસ એટલો એક્સપેક્ટ કરશે, આ સમાજ ચોક્કસ એટલે અપેક્ષા રાખશે કે જ્યારે પણ જરૂર હશે આ સમાજની અવાજ બનીને, આ કોમની, આ અવામની અવાજ બની। દિલાવર ભાઈ ઇબ્રાહિમ ને વિનંતી કરીશ કે તેઓ મોહમ્મદ હુસૈન મલિક સાહેબ જે એમની સ્કૂલના પ્રિન્સિપલ છે એમની ગુલપોશી કરે। તેઓ મંચ પર આવે, એકવાર જોરદાર તાળીઓ ડોક્ટર સાઈમા માટે। હું ઝુબેર ગોપલાની સાહેબને વિનંતી કરીશ તેમજ ઇનુસ ભાઈ દિયાકર से અભિષેક ભાઈ ઉપાધ્યાયની ગુલપોશી। કરું છું એકવાર જોરદાર તાળીઓ। જ્યાં પહોંચવાની ઝંખના અને જ્યાં જોવાની ઝંખના આપણને હોય એવું વ્યક્તિત્વ એટલે વહોરા નિશા। હું પણ 500ની સદીમાં આપણા હુજૂર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે આપણને એક નિકાહનો સહી એન્ડ એક રાઈટ મકસદ આપ્યો। એ રીતથી હુજૂર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની ખાતિરદારી કરી ને જે રીતથી એમને હરેક તબક્કામાં સાથ આપ્યો એ રીતથી તમે પણ તમારા હરેક હસબન્ડ शहजाद हसन अली और दुल्हन सा अफरोजा इकबाल भाई। વડોદરા જિલ્લાના કરજણ તાલુકાના કલ્લા ગામ, જ્યાં ફેઝ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત સુફીએ મિલ્લત સરકારે ગુજરાત સૈયદ મુસ્તાક અલી બાવા જે ફેઝ એકેડેમી ચલાવે છે, ફેઝ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ચલાવે છે અને સાથે સાથે શિક્ષણ અને સામાજિક કુરિવાજો પર બ્રેક મારવા માટેના સારા સારા કાર્યક્રમો કરે છે અને સાથે સાથે સૂફી એવોર્ડ્સ ફોર એજ્યુકેશન માટેનું પણ આયોજન કર્યું હતું। આજે 45 જોડાઓને જે સમૂહ સાદી થઈ એનાથી સમાજમાં એક એમને મેસેજ આપ્યો કે ભાઈ ખોટા ખર્ચા અને ખોટા રિવાજોમાંથી બહાર આવો સમાજ, આપણે સર્વે સમાજોની સાથે ઊભા રહેવાનું છે અને સર્વે સમાજોની સાથે ઊભા રહીને આપણા દેશની પણ તરક્કી એમાં રહેલી છે, આપણા ગુજરાત રાજ્યનું નામ આપણે એમાં વિકાસ કરી રહ્યા છે। તો આપણે સૌ કુરિવાજો છોડીને આપણા સમાજને પણ સર્વે સમાજોની સાથે અગ્રેસર કરીને સારું જે આપણી બચત થાય એનાથી આપણી જમીનો બચે, આપણી આર્થિક હાલત સુધરે, આપણા બાળકોને આપણે સાચું અને સારું શિક્ષણ આપી શકીએ એવું માહોલ સર્જાય। मेरा नाम एम तिरमिजी, मोहम्मद सुहेल एम तिरमिजी, एडवोकेट, गुजरात हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे फैज़ चैरिटेबल ट्रस्ट ने बुलाया। मैंने इनका काम देखा, माशाल्लाह 45 जोड़ों की शादी की, समूह निकाह जो बोलते हैं, ये बहुत बहुत बड़ा सवाब का काम है। और ये ही नहीं कि सिर्फ पीर साहब और खानका ऐसा नहीं है कि वो पीरी मुरीदी करते, वो तो एक पार्ट है। ये स्कूल चलाते हैं, इंग्लिश मीडियम, साइंस स्ट्रीम वाला, ये जो सोच है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगेगी तो आने वाले दिनों में
लोगों की तरक्की होगी। जो पीछे जाते जा मुस्लिम से वो काफ़ी आगे आ जाएंगे, नॉन मुस्लिम्स भी पढ़ते इधर। तो ये एक रूरल एरिया में जो है, जो देहाती इलाके में है, ये एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि शहर में लोग पैसा कमाने के लिए स्कूल कॉलेज बनाते हैं, लेकिन अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई गांव में बने, ये इंसानियत के काम के लिए ही बनी है। क्योंकि गांव में अगर बनती है तो वो कोई पैसा कमाने के लिए स्कूल नहीं बनाता है, वो सिर्फ इंसानियत के लिए, लोगों की बेटरमेंट के लिए, लोगों को ऊपर लाने के लिए, और अल्टीमेटली मुल्क की एक बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। तो ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बाबा साहब, मुश्ताक साहब और वाहिद अली साहब, ये लोगों का मैंने देखा, इनका सर्कल, इनका काम, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई। और ऐसे ही काम इंसानियत के अगर लोग करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान दोबारा सोने की चिड़िया बन जाएगा। मौजूदा दौर में विशेष जो मुस्लिम समाज के युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? युवाओं को ये कहेंगे कि आप उत्तेजित मत हो जाइए। कभी लोग जो है गलत भड़काऊ भाषण देते, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, लेकिन मुसलमान भी अगर भड़काऊ भाषण दे, गैर मुसलमान भी दे, तो हमें फरियाद करनी चाहिए। फरियाद में ऐसा है कि हम पुलिस स्टेशन में जाते कभी फरियाद नहीं लेते, तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन आप चले जाइए मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में। एक वकील का काम है ये एडवाइस देना, तो मैजिस्ट्रेट तो हमेशा समन्स निकालेगा, विटनेसेस को तपासेगा और फिर फरियाद रजिस्टर हो जाएगी। इसलिए, लेकिन आप जहाँ जहाँ फरियाद हुई, जहाँ जहाँ मुजरिमों को सज़ा हुई, वहाँ दोबारा गुनाह नहीं हुआ। तो ये आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो NGOs है, जो सोशल चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वो एनकरेज करे फरियादी को, कि जो फरियाद करेगा उसको हम इतने रुपये देंगे। तो हिम्मत आएगी लोगों में, वकील का खर्चा वो लोग करें, तो जाके इंसाफ के लिए कोई लड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग यहाँ मौजूद हैं कल्ला शरीफ में खानकाह फैज़ुर रसूल पर। बहुत सारी एक्टिविटीज़ खानकाह की तरफ से होती है, जिसमें आज एक मास मैरिज, समूह निकाह का आयोजन किया है। 45 इज्तिमाई निकाह, मास मैरिज आज यहाँ पर होने जा रहे हैं। 850 से ज़्यादा अभी तक समूह निकाह इस खानकाह के आंगन में हुए हैं। सबसे बड़ी बात जो इज्तिमाई निकाह की, समूह शादी की, ये होती है कि लोगों के लाखों रुपये बचते हैं, गलत रस्मों में, गलत रिवाजों से बचते हैं। वो गरीब जो अपने घर पर धामधूम से शादी नहीं करता, यहाँ हज़ारों की भीड़ में अपनी बच्ची को विदा करता है। इस्लाम ने निकाह को आसान किया है और ज़िना को मुश्किल किया है, और इसी के तहत पीर तरीक़त सैयद मुश्ताक अली बाबा साहब और सूफ़ी मिल्लत वाहिद अली बाबा साहब की ज़ेर निगरानी, ज़ेर सरपरस्ती ये निकाह होते हैं। यहाँ से इन लोगों को हदिये दिए जाते हैं, इन बच्चों को, इन जोड़ों को हदिये दिए जाते हैं। इनके साथ आए हुए लोगों को खाना खिलाया जाता है, तो खुशी खुशी लोग यहाँ से अपने घर विदा होते हैं। इसमें अगर हम कैलकुलेट करने जाएं, अब तक के 850 से ज़्यादा, 875 शायद, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो, निकाह एक का अगर खर्चा आप 2 लाख रुपया पकड़ो कम से कम, कितने करोड़ों रुपये इन गरीबों के बचे। एक गरीब अपने घर को गिरवी रख देता है बेटी की शादी के लिए, एक आदमी अपना समाज में एक स्टेटस बनाने के लिए और अपने आप का, अपना वजूद बचाने के लिए भी लाखों रुपया खर्च करता है। यहाँ आकर वो लाखों रुपयों की बचत होती है, वो सारे रिवाजों से बचता है, वो गलत रस्मों से बचता है, और सादगी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों भरा ये निकाह यहाँ पर आज मुनक़्क़िद हुआ है। आज कितने 45 जोड़े हैं, 45 निकाह हो रहे हैं, और पूरे गुजरात से लोग यहाँ पर आए हैं और उनके निकाह हो रहे हैं। निकाह के साथ सूफी अवार्ड का भी है जी, निकाह के साथ सूफी अवार्ड का भी है। हाँ, सूफ़ी अवार्ड हमेशा मुश्ताक अली बाबा साहब की तरफ से हर साल सूफ़ी अवार्ड का अनाउंसमेंट होता है। वो लोग जिन्होंने काम किया है कौम के लिए, वो लोग जिन्होंने देश के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है, उन लोगों को बाबा साहब की तरफ से दुआएं मिलती है और अवार्ड से नवाजा जाता है।
तालुके के कल्ला नामी एक छोटे से गांव में 16वां इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम, जिसे समूह शादी कहते हैं, वो रखा गया है, जिसमें 45 जोड़ों की शादी हुई और उसमें सूफ़ी अवार्ड फॉर एजुकेशन भी रखा गया था। उसमें समाज के जो जिन्होंने मेहनत मशक्क़त करके जो कुछ किया है, कुछ बने हैं, ऐसे होनहार बच्चों का अवार्ड देकर इस्तकबाल किया गया, जिसमें पहले नंबर पर मीना वोरा, अनिसा वोरा जो DYSP बने हैं। तो ऐसे होनहार बच्चों का 5000 जितनी तादाद के लोगों के सामने एक बड़े स्टेज से इस्तकबाल किया, ताकि उनकी कदरदानी कर सकें और वो जो दो लफ्ज़ में बोलें कि हम कैसे मेहनत मशक्क़त से आगे बढ़ें, तो इतने सारे लोग अगर सुनेंगे तो उनमें भी अपनों बच्चों को पढ़ाने लिखाने का और खिदमत का जज्बा पैदा होगा। दूसरा, आज के स्टेज से ये पैगाम दिया गया कि जो न्यूरेज इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हमने तय किया कि किसी भी गरीब का बेटा या बेटी सिर्फ पैसों की वजह से, फ़ीस की वजह से एजुकेशन से महरूम ना रह जाएं। इसलिए जो बेटा या बेटी पढ़ने वाली हो और माँ बाप पढ़ाने वाले हो, तो हम हर मुमकिन मदद करके उनको एडमिशन देने के लिए, पढ़ाने के लिए तैयार है। यही आज का पैगाम है।